Hello students, welcome to my channel. With this video we are starting solving practice paper. This is number 1 practice paper including 1 mark, 2 marks, 3 marks and 5 marks question from section A, B, C and D. We are starting with section A. It includes 1 mark question. Question number 1 देखिए. What prevents backflow of blood inside the heart during contraction? हार्ट में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड के बैकफ्लो को प्रिवेंट करते हैं जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है. सो वॉल्व्स इन हार्ट प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट. क्वेश्चन नंबर 2. नेम 2 organisms in which food material is broken down outside the body and absorbed. Answer is yeast and mushroom, and you can also write bread mold. They break the food outside the body, convert them into solution and then absorb them. This type of nutrition is called as saprophytic nutrition. So yeast, mushroom and bread molds are saprophytes. Question number 3. Why does lack of oxygen in muscles often lead to cramps among cricketers? क्रिकेटर्स की मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं जब मसल को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता बिकॉज पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. लैक्टिक एसिड मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है एंड मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं. नाउ देयर इज अ चॉइस इन दिस क्वेश्चन. चॉइस देखिए, क्वेश्चन देखिए कौन सा है. व्हाई डू द वॉल्स ऑफ ट्रेकिया नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज लेस एयर इन इट? ट्रेकिया मीन्स विंड पाइप. ट्रेकियल वॉल्स कोलैप्स नहीं करती इवन जब इनमें बहुत कम एयर होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग्स. कार्टिलेज रिंग्स इंश्योर करती हैं कि एयर पैसेज कोलैप्स ना करे. क्वेश्चन 4 असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है. यहाँ पर असर्शन स्टेटमेंट देखिए. इन प्लांट्स देर इज नो नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. This is the correct statement. Now see the reason statement. There is very little transport of gases from one plant part to another. यह भी correct statement है and correct explanation है assertion का. Plants में gases का transport one part to other part बहुत कम होता है. Plants में most of the cells are in contact with surface and exchange of gases takes place through stomata. Means no transport of gases is required. Thus, they do not require special respiratory organs. So here both A and R are true and R is correct explanation of A. So mark A. Question number 5. Assertion statement देखिए. The amount of ozone in the atmosphere began to drop sharply in the 1980s. Correct statement है ये. Now see the reason. The ultraviolet radiations from the sun are cause of skin cancer in human beings. This is also correct. Ultraviolet radiation जो अर्थ तक पहुंच रही हैं because of depletion in the ozone layer major cause है skin cancer का. But this is not the correct explanation of the assertion. Correct explanation of assertion क्या है? Because of excessive use of chlorofluorocarbon in refrigerators and in fire extinguishers, the ozone layer began to drop sharply in 1980s. So here both A and R correct हैं, but R correct explanation assertion का नहीं है. So the correct choice is B, mark B. Come to question number 6. Case based question है यहाँ पर. यहाँ दिया गया है एक पैराग्राफ. देखिए क्या है इसमें. यहाँ रिप्रोडक्शन दिया गया है इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन होता है एंड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों मेथड से रिप्रोडक्शन पॉसिबल है. नाउ सी द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखिए. रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ. रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ दोनों एक ही हैं इन unicellular algae, bacteria and amoeba. So correct answer is A, mark A.
सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, गिवन फिगर में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शो किया गया है, आपको बताना है यह कौन से ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। इट इज द मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम। सो करेक्ट आंसर यहां पर सी है, मार्क सी। कम टू थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फिगर में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स शो किया गया है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है फ्रॉम द टेबल अबाउट एक्स, अबाउट वाई एंड अबाउट जेड। सी द डायग्राम। इट इज मॉडिफाइड स्टेम ऑफ जिंजर, जिसमें वाई नोड्स हैं। वाई से एक्स अपीयर होता है, आपको एक्स बताना है, एंड ऑल्सो जेड बताना है जो वाई में प्रेजेंट होता है और एक्स बनाने में हेल्प करता है। वाई से अपीयर होता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, बिकॉज वाई में मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो करेक्ट चॉइस यहाँ पर सी है, मार्क सी। एक्स इज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल formed from Y, Y is a node and Z are meristematic cells present in Y. Fourth part of the question, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इन asexual reproduction the offspring produced are morphologically and genetically identical to the parents. asexual reproduction में ऑफस्प्रिंग बिल्कुल सेम होती हैं मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली टू द पेरेंट। करेक्ट स्टेटमेंट है ये। सेकेंड, जूस्पोर एक asexual रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट, इन asexual reproduction a single parent produces offspring without the formation of gametes. Yes, this is also correct. asexual reproduction में सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है और वो ऑफस्प्रिंग बनाता है विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। फोर्थ स्टेटमेंट, कोनिडिया आर asexual स्पोर्स इन पेनिसिलियम, यह भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सो ऑल फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर, सो मार्क डी, डी इज द करेक्ट चॉइस। फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, टेबल में से इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करना है। ए, राइजोपस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज स्पोर फॉर्मेशन, करेक्ट है ये। बी, ब्रायोफिलम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन bulbils, नो, दिस इज रॉन्ग। Here leaf help in reproduction, not the bulbils. C, planaria has regeneration process, correct statement है ये। D, Spirogyra has fragmentation method of reproduction, this is also correct. So incorrect और information है यहाँ पर B, mark B. Come to section B. Here we get 2 marks question. Question number 7. What is the role of acid in stomach? स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। यूज देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या है। फर्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। सेकेंड यूज देखिए, एसिड किल्स एनी बैक्टीरिया जो भी स्टमक में एंटर करते हैं थ्रू फूड। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे and carbon dioxide during night. Do you agree with this statement? Give reason. सभी प्लांट्स दिन में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एंड रात में कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज ड्यूरिंग डे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन से, एंड नेट रिजल्ट ऑफ दिस इज रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे। जबकि नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, सो दे गिव आउट carbon dioxide due to respiration. Question 9. How does water affect the rate of photosynthesis? Water control करता है opening and closing of stomata को। अगर water की deficiency है तो stomata close हो जाते हैं। As a result, carbon dioxide cannot enter the leaves and rate of photosynthesis slow हो जाता है। Question number 10. Why are white blood cells called soldiers of the body? White blood cells engulf कर लेते हैं बैक्टीरिया को, डस्ट को जो बॉडी में एंटर करते हैं,
and hence they are called as soldiers. White blood cells antibodies भी बनाते हैं जो fight करते हैं disease germs से. So these are the reasons white blood cells are called soldiers of the body. Section C. This section has 3 marks question. Question 11. First part of the question देखिए. Define ecosystem. The system where all living organisms in an area interact with the non-living constituent of the environment. This system is called as an ecosystem. Second part of the question देखिए. Block diagram बनाना है showing flow of energy in an ecosystem. Draw diagram with pencil as shown. चलिए इसको समझते हैं. स्टार्ट करिए सन से. सोलर एनर्जी का 1% यूज करते हैं प्रोड्यूसर्स फॉर मेकिंग फूड. अगर 1 लाख जूल एनर्जी सन से मिलती है तो 1000 जूल एनर्जी प्लांट्स के पास होगी. इट इज़ 1% ऑफ 1 लाख. और आगे क्या होगा? आगे एनर्जी का फ्लो प्रोड्यूसर्स से हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से कॉर्निवोर्स एंड कॉर्निवोर्स से टॉप कॉर्निवोर्स की डायरेक्शन में होगा. एंड हर ट्रॉफिक लेवल को अपने पहले ट्रॉफिक लेवल से 10% एनर्जी मिलेगी. सी द डायग्राम. प्रोड्यूसर्स के पास 1000 जूल एनर्जी है तो हर्बीवोर्स विल गेट 100 जूल. इट इज़ 10% ऑफ 1000 जूल. Carnivores will get 10 joule. It is 10% of 100 joule. And top carnivores को मिलेगी 1 joule. It is 10% of 10 joule energy. Also, कुछ अमाउंट एनर्जी का हर ट्रॉफिक लेवल से हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगा. एंड सी ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसर्स से टॉप कार्निवोर्स तक व्हेन दे डाई दे विल बी डिकम्पोज्ड बाय द डिकम्पोजर्स. So draw diagram with all details as shown here. Now section D, it includes 5 mark question. Question number 12. एक फिगर दिया गया है आपको अपर वन. Now answer first part of the question. Identify the flowers with dominant trait and recessive trait. F1 जनरेशन में जितने भी फ्लावर्स हैं वो पर्पल मिले हैं. वाइट फ्लावर हमें कोई नहीं मिला है. So flowers having dominant trait is purple and flowers having recessive trait is white. Second part of the question, why do we say F1 plants in this case are hybrid? F1 plant hybrid हैं because जब उन्हें self pollinate किया गया तो F2 generation में white color flower reappear हो गए along with the purple color flower. So here F1 plants in this case are hybrid. Third part of the question, what percentage of homozygous purple and homozygous white in F2 generation? इस आंसर के लिए आप क्रॉस बनाइए जैसे साइड में बनाया गया है. स्टार्ट से देखिए. पर्पल कैपिटल P को क्रॉस किया गया विद वाइट स्मॉल p से. एंड F1 जनरेशन में all flowers are purple with capital P and small p genotype. F2 जनरेशन के लिए प्यूनेट स्क्वायर बनाइए. 1 प्लांट के गेमिट कैपिटल P स्मॉल p ऊपर लिखिए और सेकेंड प्लांट के गेमिट साइड में लिखें और कॉम्बिनेशन बनाएं. नाउ सी द रिजल्ट. होमोजाइगस पर्पल कैपिटल P 4 में से 1 है, मीन्स इट इज 25%. एंड होमोजाइगस वाइट स्मॉल p भी 4 में से 1 है, मीन्स इट्स परसेंटेज इज ऑल्सो 25%. सो 25% आर homozygous purple and 25% are homozygous white in F2 generation. So that's all for today. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.